Good afternoon, everyone. Am I audible? Good afternoon. Am I audible? Ranjita, am I audible? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Tanvi. Okay, so I again welcome you all. This is the fifth session of our add-on, that is student training program on MS Excel and IT applications. And the topic for today is mathematical and date functions. Last class, that is our session 4, it was on the topic lookup, and because of some shortage of time, we were left with some few concepts of lookup. So first I'm going to finish up those concepts, and then we will start with a new topic of mathematical and date functions. I have already shared a Excel sheet with you on your WhatsApp groups regarding the mathematical and date function. So you can always download it as a reference purpose. So I'm sharing my screen. First, we will complete the lookup functions of Excel, and then we will proceed on with the next topic. I may extend the class today by 15-20 minutes, because today is your last session with me, so I want to complete both the topics. Okay, so in the last class, सबसे पहले तो there was a problem that we were not able to find the answers of our problem with this lookup by using this lookup function. हमने इसमें ये डिफरेंस वाली शीट में हमने एच लुकअप यूज किया, हमारा आंसर आ रहा था, हमने वी लुकअप यूज किया, हमारा आंसर आ रहा था. बट जब सेम चीज में हमने लुकअप, द ओनली लुकअप फॉर्मूला विच वी हैव, हमने यूज किया तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था. उसका रीजन ये है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ अ लुकअप फंक्शन. ओनली लुकअप फंक्शन जो होता है उसकी एक शॉर्टेज होती है, एक शॉर्टकमिंग है, दैट इज व्हाई वी डू नॉट यूज इट ऑलवेज. So in the last class, one of you was saying that why can't we simply use the lookup function? Why do we always go for v lookup or h lookup? Yes, lookup function is easy to use, but there is a very serious shortcoming. In the lookup function, both the arrays means the lookup vector as well as the result vector, both of them have to be arranged in an ascending, और both of them have to be arranged in an descending order. दोनों ही arrays या तो ascending order में arrange होंगे या descending order में. For example, if I talk about it here, let us look here. If I am talking about the names vector here, and if I'm talking about the marks vector here, so in order to get the correct answer, I have to arrange both of them in the ascending, and in the both of them should be arranged sequentially, like the names also should be alphabetically and the marks also should be in ascending order. So this way if we look, we cannot always get the right result, because ऐसा जरूरी नहीं है कि सीरियल नंबर ए बी सी डी से जैसे जैसे मैं स्टार्ट करूं तो मुझे रिजल्ट वेक्टर में ही उसी तरह से मार्क्स मिले. सो ये लुकअप फंक्शन की एक शॉर्टकमिंग है कि दोनों एरेज आपके जो हैं वो सीक्वेंशियल अरेंज होने चाहिए. इसको मैं आपको प्रूव भी करके दिखा सकती हूँ. इफ वी लुक हियर, just go back onto the lookup sheet. See here, the I have arranged these names in the ascending order. Ascending order means I have arranged these names alphabetically, and I have written hypothetical marks also in the ascending order. Whereas if we look at the marks of physics, let us just arrange them in some other manner. Let us give them some random numbers like this. Let me say this is 61, this is 69, again this is let's say 17. So I have arranged maths के नंबर आपके sequentially arranged है, लेकिन physics के नंबर आपके sequentially arranged नहीं है, and names are arranged alphabetically. So if now you write the lookup formula here, for example, I want to know the marks of Bob in maths and in physics. Let's say I'm not taking Bob here, let's say I'm taking Jenny. So when you type the formula here for maths equal to lookup, the lookup value means कौन सी value को आप look करना चाहते हो. So I want to look up the value which I have written here, comma the lookup vector. So this is the lookup vector क्योंकि यहाँ पे आपको ये नाम मिलेंगे. I am fixing it, although it is not required, still I am fixing, comma the result vector. So this is for maths, this is my result vector. Again I am fixing it. You close the bracket, you press enter, and you will get the required marks. Jenny के maths में 44 marks हैं, which is correct.
But if the same formula I apply here, let us see whether we are getting the right value or not. Lookup, again, this is the lookup value, and this is my lookup value vector, which will remain same, function plus f4, comma, now this is my result vector. Now it depends, you may or you may not get the correct answer. Again, see, it is saying me 51. So it is yes. Physics also, it is giving me the right answer. Now, if I change the name here, let me say if I write Maria here, whether it will give me the correct answer? Yes, it is giving me the correct answer. If I write another name here, let me write Tread here, whether it is giving me the correct answer? Yes, it is giving me the correct answer. So the result vector, what is the conclusion? The result vector may or may not be arranged in an ascending order, but this particular vector, which is your lookup vector, must always be arranged in an ascending order. अगर मैं यहाँ पे इनका नाम change कर दूँ, let me say इसका नाम, let me say here it is Matt and it is Bob here, whereas it is Jill here, and in place of Jill it is Brad here. Now if you see, and this is also not Tread, this is let's say Josh, and in place of Josh I have written Tread. Now if you see, if I now change the name here, if I write Brad, it is giving me again 5543, yes, which is correct. If I write Matt, it is giving me 8292, which is not correct because math ke marks to hai 3862. So now it is not giving me the right answer. So for using the lookup function, it is necessary that your lookup vector must be arranged in an ascending order. आपका result vector चाहे जैसे भी arranged हो, but आपका lookup vector, जिस चीज में आप अपनी value ढूंढ रहे हो, वो lookup vector आपका ascending order में arrange होना चाहिए, otherwise आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा. हो सकता है कुछ चीजों के लिए मिल जाए, जैसे हमने देखा मैथ के लिए हमें करेक्ट आंसर नहीं मिला, बट जब हमने यहाँ पे कोई भी और लिखा, फॉर एग्जांपल हमने ब्रैड लिखा, तो ब्रैड के लिए हमें करेक्ट आंसर मिल गया. सो इट डिपेंड्स, एक्सेल में और मे नॉट गिव यू द राइट आंसर दैट वेज. सो अगेन दिस इज अ शॉर्टकमिंग ऑफ द लुकअप फंक्शन. इफ वी यूज द वी लुकअप फंक्शन इंस्टेड ऑफ दिस, तो ये प्रॉब्लम नहीं अराइज होगी. आप जैसे मर्जी अरेंज करो चीजों को, इट विल ऑलवेज गिव यू द राइट आंसर. Okay, now we have done the lookup function, we have done the VLOOKUP function, we have done the HLOOKUP function, and I have also told you how to use the VLOOKUP function along with the match function, जिसकी वजह से आपको बार बार फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता, हमें बार बार फॉर्मूले के अंदर अपना कॉलम नंबर चेंज नहीं करना पड़ता. हम एक बार मैच फंक्शन यूज करेंगे, सेल की कुछ फिक्सिंग्स के साथ हम उसको यूज करेंगे, हम उसको ड्रैग करेंगे, एंड वी विल गेट द आंसर फॉर आवर एंटायर एरे. दिस वाज द एग्जांपल हियर व्हिच आई गेव यू. हमने यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिखा, दिस वाज द फॉर्मूला व्हिच वी रोट. एक बार हमने फॉर्मूला लिखा, हमने उसको ड्रैग किया और हमें हमारा आंसर जो है वो ठीक मिल गया. ओके, नाउ अनदर थिंग व्हिच वाज लेफ्ट हियर, लास्ट टॉपिक हमारा जो वी लुकअप का, नॉट द लास्ट टॉपिक, द सेकंड लास्ट टॉपिक was the topic fuzzy lookup. Now fuzzy lookup अगर आप Excel में टाइप करोगे, if you will think you type equal to fuzzy lookup, no, you will not get anything because it is not a formula in Excel. It is a add-in. Add-in means something which you have to go on internet, which you have to download, which you have to install. It is an additional feature which by default is not there in Excel, but yes, you can always download it. It is free of cost and it is very easy to download. Very simple. I am telling you, I am opening a new tab here. You open Google, simply type fuzzy lookup in Excel, download. आपके पास आएगा फजी लुकअप इन एक्सेल डाउनलोड. सबसे पहले वाला आपको microsoft.com वाला लिंक यू हैव टू ओपन एंड यू गो हियर. यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड. बिफोर डाउनलोडिंग इट यू मस्ट मेक श्योर कि आपके लैपटॉप्स पे कोई भी एक्सेल की फाइल पहले से ओपन ना हो. पहले सारी एक्सेल फाइल्स बंद कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल करके रन कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस एड-इन ऑफ फजी लुकअप. अब क्यों डाउनलोड करना है ये फजी लुकअप, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? हमारे पास जब वी लुकअप है, हमारे पास जब एच लुकअप है, तो हम वही यूज क्यों नहीं कर सकते? वी डाउनलोड फजी लुकअप टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल हियर
what I have is, ये मेरे पास कुछ client names हैं. Let me just increase the size of the screen. कुछ क्लाइंट नेम है मेरे पास और उसके आगे कुछ अमाउंट, रैंडम कुछ अमाउंट लिखा हुआ है. अब किसी और शीट में या कहीं और मेरे पास इन क्लाइंट नेम एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिखे हुए हैं जिसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज रिटन हेयर द मैसूर पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बट यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है मैसूर मिल पेपर. Here it is written Katha Mediatex India Private Limited. Here it is written Katha M India. So क्या किया है हमने, एक जगह पे आपने कंपनी का प्रॉपर नाम लिखा है और वहीं दूसरी जगह आपने बीच बीच में से या तो आपने कुछ वर्ड्स गायब कर दिए, या कुछ आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या आपने कुछ के शॉर्टकट कीज लिख दी है, या आपने अपनी ही अंडरस्टैंडिंग में वहां पे कोई और कंपनी का निकनेम लिख दिया है. नाउ यू वांट कि जैसे जैसे ये अमाउंट यहाँ लिखा है, ऑटोमेटिकली एक्सेल आपको यहाँ पे भी वो अमाउंट लिख के दे दे. मतलब मैसूर पेपर के आगे अगर 15 लिखा है तो यहाँ आपको 15 मिल जाए. सिमिलरली काथा मीडियाटेक्स के अगर 25.4 25.4 लिखा है तो यहाँ आपको 25.4 लिखा हुआ मिल जाए. अब इसके लिए अगर आप वी लुकअप विथ ट्रू भी यूज करोगे ना, वो भी आपको गलत आंसर्स देगा, क्योंकि ये इनमें बहुत बहुत डिफरेंस है. ट्रू तब काम करता है जब थोड़े बहुत डिफरेंस हो, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हो, अदरवाइज ट्रू फंक्शन डज नॉट वर्क. ट्रू फंक्शन का कोई और पर्पस होता है जो हम इसके बाद देखेंगे. सो यहाँ पे काम आता है, इस जगह पे काम आता है फजी लुकअप, जो एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता. यू नीड टू डाउनलोड इट. बिफोर डाउनलोडिंग मेक श्योर ऑल द एक्सेल फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर आर क्लोज्ड. You download it, you install it, run it, and then you open any Excel. जब आप उसके बाद कोई भी Excel आप open करोगे, you will see here जहाँ पे ये लिखा है, please look here, file, home, insert, draw, page layout, formulas. In the end here it is written fuzzy lookup. ऑटोमेटिकली आपके एक्सेल्स में, सभी एक्सेल शीट में बाय डिफॉल्ट, इन एवरी एक्सेल शीट ऊपर एक हेल्प के साथ एक और टैब बना हुआ आ जाएगा विद द नेम फजी लुकअप. दैट इज व्हाई इट इज एन एड इन एंड नॉट एनी फंक्शन इन एक्सेल. नाउ हाउ टू यूज दिस? Simply, because it is not a formula, I am not going to write equal to or anything. I am simply clicking on it. जैसे ही आप इस फजी लुकअप पे क्लिक करोगे, इस तरह की एक स्क्रीन आएगी. नाउ यू हैव टू डबल क्लिक हियर. As soon as I will double click here, a window will pop up on the right hand side. I am again telling you what I have done. I have first clicked here. Let's say I am on some other tab. I have first clicked here on fuzzy lookup. After clicking on fuzzy lookup, I have double clicked here below, file के बिल्कुल नीचे fuzzy lookup जहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ double click किया. As soon as I will double click on it, I will get a window which will open up on the right hand side, which will ask me what is your left table, and then it will ask me what is your right table. Now again I am closing it. First of all, it has asked me what is my left table, and then it has asked me what is my right table. That means फजी लुकअप बोल रहा है कि आपने वी लुकअप यूज किया. वी लुकअप में वो आपसे क्या पूछता था कि आपका एरे क्या है, आपका मतलब डेटाबेस कहाँ पर है, वो आप एक्सेल में सिलेक्ट करते थे, आपको पता चल जाता था. लेकिन फजी लुकअप आपसे क्या पूछ रहा है, आपकी टेबल कौन सी है. मतलब फजी लुकअप को दो टेबल्स चाहिए. टेबल 1 जो आपकी एक मेन टेबल होगी, देन ही वांट्स द टेबल 2 जिसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चाहिए. तो यहाँ पे हमारी, अगर हम देखें तो यहाँ हमारी टेबल्स कौन सी होंगी. बाय डिफॉल्ट यस, दिस विल बी माय टेबल 1 एंड दिस विल बी माय टेबल 2. अब टेबल कैसे बनाते हैं एक्सेल में? सपोज इसको मुझे टेबल बनाना है. यू सिलेक्ट दिस, यू गो ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल. My table has headers, yes, client name and amount. Click on OK, and this will automatically be converted into table. Again, I am telling you how to insert a table in Excel. या तो simply आप कहीं पे भी जाके पहले टेबल इंसर्ट करो, फिर आप उसके अंदर वैल्यूज ऐड करो. अदरवाइज अगर आप पहले से कहीं पे भी वैल्यूज लिख चुके हो तो इट इज वेरी सिंपल टू इंसर्ट अ टेबल इन एक्सेल. आपको वर्ड की तरह टेबल बना के एक एक चीजें उसके अंदर लिखनी नहीं पड़ेंगी. Very simple. Select the area where you want your table. I have selected this. You go on insert, you click on table, and the table, you press OK, the table will be inserted. So this is my first table. Again, now I have selected this. I again go on insert. I have clicked on table. I click OK. This is my second table.
अब मैंने टेबल इंसर्ट कर दी. टेबल इंसर्ट करने के बाद नाउ आई विल गो टू माय फजी लुकअप, क्योंकि फजी लुकअप को डेटा टेबल की फॉर्मेट में चाहिए. लेफ्ट टेबल मतलब जो टेबल लेफ्ट हैंड साइड पे है. कौन सी टेबल है लेफ्ट हैंड साइड पे? टेबल 2 और 3 दिखा रहा है. सो आई मस्ट हैव इंसर्टेड सम अदर टेबल आल्सो इन एक्सेल. दैट इज व्हाई ये दो टेबल्स दिखा रहा है, टेबल 2 और टेबल 3. So left table is table 2 and right table it has already taken table 3. If you want you can change it. Now it has asked me कि आपको जो resulting table चाहिए उसमें amount, client name और customer name. I want client name also, I want amount also. First the left column. Okay. Keeping everything else aside, now just look at the bottom where it is written similarity threshold. If you will click on this, ये similarity threshold को अगर आप drag करोगे, if you will drag it towards the right hand side, it will keep on increasing. If you will drag it towards the left hand side, it will keep on decreasing. अब इसका क्या मतलब है? First of all, let me drag it towards the right hand side. It is the value is right now 0.58. I am just clicking enter here. Go. Let me see what I will get. Must define at least one fuzzy join. Okay. वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ भी फजी लुकअप को कुछ मिला ही नहीं जो आपस में मैच हो सके. सो उसके लिए मुझे अपने सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड को थोड़ा कम करना पड़ेगा. नाउ लेट अस सी. गो अगेन. मस्ट डिफाइन एट लीस्ट वन फजी टू ज्वाइन. सो लेट मी again decrease my now see here what it has done is जैसे ही मैंने अपना थोड़ा सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड डिक्रीज किया, it has shown me the client name here, the amount here, it has shown me the customer name. अब आप देखो मैसूर पेपर के आगे मैसूर मिल पेपर आ गया, काथा मीडिया टेक्स के आगे काथा एम आ गया, एपीजे के आगे एपीजे आ गया, ऑल दो स्पेलिंग मिस्टेक है, भारतीय टेलीकम्युनिकेशंस के आगे भारतीय टेलीटेक आ गया, और ये सारे अमाउंट भी मुझे यहाँ पे मिल गए. राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो एक सिमिलैरिटी इंडेक्स की टेबल आ गई. मतलब इन दोनों में भारतीय टेलीकम्युनिकेशंस में और भारतीय टेलीटेक में सिमिलैरिटी कितनी है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी इंडेक्स? सो बोथ ऑफ द वर्ड्स आर हैविंग 0.41 सिमिलैरिटी. Similarly, in APJ Business Centers, the similarity index is 0.81. तो ये similarity index अगर आप यहाँ जाके थोड़ा बढ़ा देते हो, अब आप गो करते हो इसको, तो आप देखो, sorry, let me just undo it because I want my answer. Let's say here, if I increase my similarity index to the maximum level and if I go, I will not get any answer here क्योंकि कोई भी उसको similarity जो है वो यहाँ पे नहीं मिली. Again, if I further reduce my similarity index a little bit, again if I press go, कोई भी again उसको similarity नहीं मिली. Again, if I further reduce my similarity index, if I press go, शायद अब उसको एक आधी कोई similarity मिल जाए, नहीं मिली. सो जितनी ज्यादा आप अपना सिमिलैरिटी इंडेक्स रखोगे उतना ही आंसर आपको कम मिलेगा. जितना कम आप सिमिलैरिटी इंडेक्स लिखोगे उतने आंसर्स आपको ज्यादा मिलेंगे. So this is fuzzy lookup where we can match any sort of data with any sort of data. अगर हमारे कुछ डेटा में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है या हमने शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर ली है या एक आधा वर्ड हम बीच में से हटा दिया है हमने, तो ये सब चीजें आप फजी लुकअप के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो. Okay, moving on to the next topic and final topic for VLOOKUP, that is VLOOKUP true. Now, what is this VLOOKUP true? I have some data with me. This is a list of some students. In front of them some random number. मैंने ये random number generate करके मैंने यहाँ पे कुछ marks लिखे हैं. Now you see this and you see this table as well. ये टेबल क्या दिखा रही है? अगर बच्चे के मार्क्स 0 से 39 में है देन ही इज फेल, अगर 40 से 89 में है देन ही इज पास, और अगर 90 से 100 में है देन ही हैज पास्ड विद डिस्टिंक्शन. नाउ व्हाट आई वांट इज, आई वांट कि यहाँ पे स्टेटस में जो बच्चों का ये स्टेटस वाला कॉलम है,
यहाँ पे इस मार्क्स के अकॉर्डिंग, इन मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप फेल, पास या डिस्टिंक्शन लिखा हुआ आ जाए, मुझे जरूरत ना पड़े कि मैं एक एक बच्चे के मार्क्स देखूं। आर्जव के मार्क्स हैं 55 लाइज इन द सेकंड कैटेगरी, सो आई राइट पास हियर। आयुष के मार्क्स हैं 61 अगेन लाइंग इन द सेकंड कैटेगरी, सो आई राइट अगेन पास हियर। अभिनव के मार्क्स 24 हैं, 24 लाइज इन द फर्स्ट कैटेगरी, सो आई राइट फेल हियर। I do not want to do this because the list is very long and I don't want to waste my time. So what do you do in these types of cases? यहाँ पे काम आता है आपका VLOOKUP with true function. अभी तक हमने VLOOKUP को कौन से उसके साथ यूज किया था? फॉल्स के साथ, जहां पे हमें चाहिए होता था कि एग्जैक्ट मैच, बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो जाए। अब यहाँ पे हम करेंगे VLOOKUP बट विद अ ट्रू फंक्शन। ट्रू फंक्शन का मतलब है, अब ट्रू फंक्शन को यूज करने के लिए आपने सबसे पहले क्या लिखना है? यू हैव टू राइट हियर द फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज मतलब आई राइट, लेट्स से आई राइट 0 हियर, आई राइट 40 हियर एंड आई राइट 90 हियर। आई हैव रिटन द फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। जो ये मेरी 0 to 39, 40 to 89, 90 to 100 वाली सीरीज है ना, मैंने इसमें इनका फर्स्ट नंबर लिखा है। क्यों लिखा है अभी बताती हूँ। नाउ आई विल राइट हियर इक्वल टू VLOOKUP। कैन एनीवन टेल मी नाउ व्हाट इज माय लुकअप वैल्यू? व्हाट इज माय लुकअप वैल्यू नाउ? My lookup value now is this number 55. Am I right? Yes, ma'am. Okay. Comma. Now my table array. Table array means मुझे अपनी वैल्यू कहाँ से चाहिए? मुझे अपनी वैल्यू यहाँ से चाहिए। इसको फिक्स करना मत भूलना, वरना नीचे के सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। अगेन कॉमा, इट विल आस्क यू द कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब ये टेबल में 3 कॉलम्स हैं, आपको कौन से वाला आंसर चाहिए? मुझे थर्ड कॉलम से मेरा आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि पता लगाना है कि बच्चा फेल है कि पास है कि उसकी डिस्टिंक्शन है। सो आई वांट माय रिजल्ट फ्रॉम द थर्ड कॉलम। Now comma, now it will ask you whether you want an approximate match or exact match. अब यहाँ पे आप या तो true लिख दो या 1 लिख दो, whatever way you want. I am writing true here. I am closing my bracket. Press enter. Now you know whether a student is pass or fail. Double click. चाहो तो इसको match कर लो. Increase the font size, make it bold. Yes. Abhinay Gupta 93 marks, distinction. It is matching. Yes, it is matching. Similarly, Amarte 69 marks, pass. Yes, it is matching. So इस तरह के फंक्शंस में आपका VLOOKUP विद द फंक्शन ट्रू यूज में आता है। इसमें हमने क्या किया, कुछ बातें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यूजिंग दिस VLOOKUP फंक्शन, आपकी ये जो सीरीज है इसके आपने फर्स्ट लेटर्स को, फर्स्ट नंबर्स को, लाइक 0, 40 एंड 89, सॉरी 90, आपने एज इट इज पहले वाले नंबर्स को आपने इधर लिखना है। एंड यू हैव टू राइट इट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ओनली। आप ऐसे नहीं करोगे कि इन नंबर्स को इधर लिखने के बजाय आप इनके आगे लिख दो कि 0, 40, 90। नो, ये गलत हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि VLOOKUP का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, VLOOKUP के कुछ टैंट्रम्स होते हैं, जिसमें से एक टैंट्रम है कि जो चीज आप देख रहे हो वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। तो मैं नंबर देख रही हूँ 55, 61, तो वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही होने चाहिए। इसलिए ऑलवेज राइट दीज वैल्यूज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ये स्कोर चाहे इधर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, डजंट मैटर, आंसर विल नॉट चेंज। बट अगर ये नंबर्स आप उठा के इधर की जगह इधर लिख दोगे, ये सारे आंसर्स नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे, बिकॉज दे हैव टू बी रिटन। या अगर आप इन्हें उठा के लेट्स से इधर भी लिख दोगे तो भी आपके आंसर्स जो हैं वो नॉट एप्लीकेबल रहेंगे, क्योंकि ये आपकी टेबल के फर्स्ट कॉलम में नहीं है, ये आपकी टेबल के सेकेंड कॉलम में है। सो ऑलवेज राइट दीज टुवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ योर टेबल, ओनली देन यू विल गेट योर मार्क्स। This is how you use the function of VLOOKUP with the value true. अब ये किस चीज में यूज आता है? ये
एक एग्जाम्पल तो मैंने इसको आपको अभी दिया, आपको पता लगाना है स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है। जैसे हम लोग कभी डेटाबेस बनाते हैं कि बच्चे का ग्रेड क्या होगा, A+ होगा कि O+ होगा, कौन सा ग्रेड होगा बच्चे का। अगेन VLOOKUP फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। यू मेक अ टेबल कि अगर इतने से इतने मार्क्स हैं तो ग्रेड A+ है, इतने से इतने मार्क्स है तो ग्रेड O पॉजिटिव है, अदरवाइज ग्रेड A है, अदरवाइज ग्रेड B है, एंड यू गेट योर रिजल्ट। अनदर वे टू यूज इट, जो ये आपकी फूड ग्रेडिंग कंपनीज होती हैं, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी किसी भी चीज का वेट इतने से इतने हैं या किसी भी चीज में कोई क्वांटिटी इतने से इतने में आपने यूज करी है, तो आपका जो फूड ग्रेड है वो टॉप मोस्ट क्वालिटी का है, अदरवाइज मीडियम क्वालिटी का है। अगेन यू कैन यूज VLOOKUP with true function there. So this is how you use the function of VLOOKUP. Now, any doubts in the lookup functions? Anything, VLOOKUP, HLOOKUP, only lookup, VLOOKUP with true, fuzzy lookup, or VLOOKUP with match, anything, because from my side this topic is over now. मैम ये तो इफ फंक्शन से भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है इफ फंक्शन से, लेकिन आपको उसमें बहुत बड़ा सिंटेक्स टाइप करना पड़ेगा. लेट मी डू दिस विद इफ फंक्शन. इक्वल टू what you will use, the if or ifs, I will use ifs. Equal to if function, what is the logical test value, then you will write if this is this then this is that. उसमें आपको बहुत बड़ा एक सिंटेक्स टाइप करना पड़ेगा. ये if फंक्शन से बिल्कुल हो सकता है, और आप ये सीखोगे भी. यू हैव अ क्लास विद लॉजिकल फंक्शंस एंड इफ फंक्शंस की आपकी एक क्लास होगी जो प्रवीण सर लेंगे, उसमें वो आपको ये सब चीजें बताएंगे कि सम इफ, काउंट इफ, या आपको इसको इफ फंक्शन से कैसे यूज करना है. बट उस सिंटेक्स को टाइप करने में आप VLOOKUP में जितनी भी चीजें करते हो वो सारी चीजें आप इफ फंक्शन से भी कर सकते हो. कि अगर ये वैल्यू इतनी है देन द आंसर शुड बी दिस, अगर ये वैल्यू इतनी है देन द आंसर शुड बी दिस. फॉर एग्जाम्पल, इक्वल टू if this value, if the logical test value is this, then it was something like, wait, बहुत बड़ा सा सिंटेक्स होता है इसमें जो आपको टाइप करना पड़ता है. इफ A is greater than, okay, nested if use होगा. yes, if this is greater than 0 but less than, then you give the value pass. yes, इसमें nested if use होगा जिसके अंदर आपको if के अंदर if लगाने हैं. so बहुत बड़ा यहाँ पे एक लॉजिकल फंक्शन जो है वो बन जाता है. if my value is greater than or equal to 0, then the answer should be pass. Again press comma. if logical test value क्या है 2, if my this value is greater than or equal to 40, then the answer should be pass. I think I have done a mistake here, because this should be fail. Again, if I say comma, if my logical test value is greater than or equal to 90, then my answer should be distinction. You have entered too few arguments for this. Okay. A mistake is there in the formula. Okay, I got it. जितनी भी टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं जब आप इफ फंक्शन में यूज करते हो, यू हैव टू राइट दोस टेक्स्ट वैल्यूज इन इन्वर्टेड कॉमास लाइक दिस. फेल को आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, देन पास को आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, अगेन कॉमा, देन डिस्टिंक्शन को आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है. It is giving you fail because of some mistake in the formula. ये मैंने greater than equal to 0 तो लिख दिया. Let us see. Yes, it will always give me fail क्योंकि मैंने first argument जो यहाँ पे डाला था वो मैंने लिखा था greater than equal to 0. यहाँ पे आपको एक और argument डालना पड़ेगा. Not only greater than equal to 0 but it should also be less than 40. Otherwise वो सबको बोलेगा कि 0 से तो बड़े तो सारे ही हैं,
तो वो सबको फेल वाली कैटेगरी में ले लेगा। द पॉइंट सिंपली हियर इज कि अगर आप ये इफ फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपका आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट अगर आप वी लुकअप फंक्शन यूज करते हो तो उसमें गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं, ओनली इफ यू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन कंप्लीटली। अगर किसी को इफ फंक्शन समझ में आता है देन यू कैन यूज द इफ फंक्शन एज वेल। ओके, एनी अदर प्रॉब्लम हियर in the VLOOKUP or in the fuzzy lookup? Any problem here? Okay, so now let us start with the next topic for today, that is the mathematical and date functions in Excel. Let me just close this file. Okay, I have given you a sheet with this sort of data. You have some 30 mathematical functions here and some 18 date functions here. Apart from this, I have not given you any data on which we will work upon, क्योंकि ये functions ऐसे हैं जिनके लिए कोई बहुत अच्छा data शायद हमें required नहीं है। हमें इन functions को basically समझना है कि इन functions में हमने करना क्या है। So आज हम ये 30 mathematical functions पढ़ेंगे और ये 18 date functions पढ़ेंगे। Let us start with mathematical functions first. I will explain you each and every function and I will try to explain that function with example. Let us increase the font size. Okay. Although again, I'm not saying mathematical and date functions, they are not limited to this, but most of the functions I have covered as far as जितने functions मैं cover कर सकती थी उतने cover मैंने किए हैं. Most of them I have tried to cover. Okay, so the first function in mathematical function is the absolute function. Now, absolute function, simple, it returns the absolute value of a number ignoring its sign. और इसकी formula होता है equal to ABS. In bracket, you have to give the number for which you want the absolute value. For example, if I have minus 17 here, if I have 17 here, if I have minus 18 here, if I have minus 19, then if I have only 19 here, I want, मेरे पास ऐसी एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं चाहती हूँ मुझे दूसरे कॉलम में ये पता चल जाए कि ये नंबर मेरा जो है वो नेगेटिव है कि ये नंबर मेरा पॉजिटिव है. नाउ हाउ विल आई कम टू नो दिस? ऑल्दो यस, आई कैन सिंपली सी इट विथ माई आईज कि ये -17 है तो इट इज नेगेटिव, एंड आई कैन कीप ऑन टाइपिंग नेगेटिव. Okay, this is positive. No, Excel says simply use the function equal to ABS, that is absolute, and you give the number. This is the number. Close the bracket, press enter. It has converted the number. Okay, that function is sine. I'm so sorry. This will convert the number, any number, into an absolute number. For example, this was -17, it will convert it into 17. This was 17, it will convert it into 17 only. This is -18 to 18. The number which will return the sign is by the name sign. Formula is sign. Equal to sign. I gave this number, bracket close, you press enter. It will return -1 if the number is negative, and it will return +1 if the number is positive. So you see here, this is -1 because the number 17 was a negative number, and again this two are again -1 because these two were again -18 and -19. So this is the absolute function and this is the sine function. What does the absolute function do is, आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है नंबर्स की जहाँ पे कुछ नंबर्स नेगेटिव है, कुछ नंबर्स पॉजिटिव है. आपको एक क्लिक में सभी नंबर्स को पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करना है. You go for this absolute function. And if you want to know the sign of a particular function, then you use the sine function. So these are the two functions. This is the absolute function which I have just explained, and here it is the sine. Yes, this is the sine function which you can use in Excel. Sine function returns the sign of the number. The syntax for this is equal to sign, and you have to select the number. Absolute function returns the absolute value of a number ignoring its sign. That means -17 will become 17, -18 will become 18, 17 will remain 17, and you can also return its sign if you want. Okay, now let's come to the next function, that is the Arabic function. अब
आई होप यू पीपल रिमेंबर अरेबिक नंबर्स होते हैं और रोमन न्यूमरल्स होते हैं. रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? रोमन न्यूमरल्स होते हैं ये. फर्स्ट, दिस इज सेकंड, लेट्स से दिस इज फर्स्ट, सेकंड, ये रोमन न्यूमरल्स है. थर्ड, then this will be 4, this will be 5, this will be 6 and so on and so forth. Suppose आपके पास इस तरह की सीरीज है रोमन नंबर्स की. अगर आप चाहो तो इसको ड्रैग करोगे तो एक्सेल आपको, okay, Excel will not, otherwise Excel should have given me the Roman numbers only. Let me say this is 7, this is 8, this is 9, this is 10. So ये मैंने रोमन नंबर्स की एक सीरीज लिखी. नाउ सपोज यू हैव अ सीरीज ऑफ अ रोमन न्यूमरल लाइक दिस एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल नंबर्स. यू वांट नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 like this. You want normal numbers. So simple formula is there for that, equal to Arabic. Now this is Arabic formula. And text. Text means this you have bracket close, enter. You have received the Arabic numbers for this Roman numerals. So these are the Arabic numbers and these are your Roman numerals. Easily convert any Roman numeral into Arabic numbers in Excel, and you can also do vice versa. You can also convert any Arabic number into Roman numerals as well. Let me write some more Arabic numbers here. Let's say 11, 12, 13, 23, 56, 100, 99, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 3, 999, 123, etc., etc. I have a list of Arabic numbers with me and I want, मुझे Arabic numbers नहीं चाहिए, मुझे again Excel से यहाँ पे कुछ Roman numbers चाहिए. पहले हमने फॉर्मूला यूज किया था इक्वल टू अरेबिक. नाउ सिंपल यूज द फॉर्मूला इक्वल टू रोमन. दिस इज द नंबर, कॉमा. अब जब हमने रोमन से अरेबिक में कन्वर्ट किया था वहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें सिर्फ अपना टेक्स्ट बताना था जो हमने बता दिया. बट व्हेन यू कन्वर्ट अ रोमन नंबर into an Arabic number into a Roman number, Excel आपको 5 ऑप्शंस देगा. 0 फॉर क्लासिक, क्लास, एंड दिस इज ऑप्शनल. अगर आप कुछ भी चूज नहीं करोगे, सिंपली यहीं पे ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे तो भी वो आपको आंसर दे देगा, दैट इज 1. और ये बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 वाला, दैट इज क्लासिक वाला ऑप्शन लेता है. बट इफ आई वांट टू गो फॉर सम मोर ऑप्शंस, नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस. Now what is these classics? 0 is for classic. If you omit it also, then also it will take 0. 1 is for more concise, 2 is for further more concise, 3 is for further more concise, and 4 is simplified. अब ये एक्सेल के 4-5 अलग अलग तरीके हैं रोमन न्यूमेरल्स को डिफाइन करने के लिए. जब तक आप 2 डिजिट नंबर पर हो ये सब सेम रहेंगे. जब आप 3 डिजिट नंबर पे चले जाओगे तो ये अलग अलग होने लग जाएंगे, और जब आप 4 डिजिट नंबर पे चले जाओगे तो ये पांचों आपको अलग अलग आंसर देंगे. किस तरीके से अलग अलग आंसर देंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट रोमन नंबर फॉर 499, just see here on the help dialog box, Roman number with the 4 with a 0, that means classic one, it will give you the result CDXCIX. But if you go it for 1, it will give you a concise version, that is LDVLIV. If you write 2, वो और concise कर देगा उसको, it will be XDIX. If you write 3, वो उसको और concise कर देगा, it will give you VDIV. And if you write 4, वो उसको आपका सबसे simplified version आपको देगा, that is ID. Now, any one of you who is having complete knowledge of Roman numerals would be able to understand this CDX, CIX, LDV. ये अलग अलग तरीके हैं रोमन नंबर्स को लिखने के. 1 से लेकर 99 तक रोमन नंबर सब सेम रहेंगे, चाहे आप कोई भी फॉर्म यूज कर लो, इट विल रिमेन सेम. बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप 3 डिजिट नंबर पे या 4 डिजिट नंबर पे जाओगे तो एक्सेल आपको 5 अलग अलग स्टाइल्स देगा नंबर लिखने के. दैट इज व्हाई हियर आई हैव रिटन 4 डिजिट नंबर as well as 3 digit number to show you what will happen when you use Roman with a 0.
what will happen what will happen when you use Roman with a 1? Let me say I am using Roman with 1 as the syntax here. Again, I am using Roman here with 2 as a syntax. I want to tell you the difference. That is, I am using this with 3 as the syntax, and here I will use Roman with 4 as a syntax. Now let us see मुझे किस किस में आंसर्स डिफरेंट मिलते हैं और किस किस में मुझे आंसर्स सेम मिलते हैं. So here this is Roman with 0 equal to, let me say, Roman. I want this number, comma, now form, I want it in a concise form, 1. You double click, see, till you are on 2-digit number, even for 100, for 99 it is different. For most of the numbers it is same. 13 का बिल्कुल सेम है, 23 का बिल्कुल सेम है, 56 का बिल्कुल सेम है, 100 का बिल्कुल सेम है, 99 का थोड़ा डिफरेंट है. If I talk about the 3-digit number or the 4-digit number, it is always different. For 1, 2, 3, 4 it is different. For 3, 4, 5, 6 it is different. For 123 it is again same. For some digits it may be same depending upon how Roman numbers are written or can be written. Okay, now if I use 2 as the syntax, equal to Roman, again select the number, again select the form as 2, press enter, double click here, and you will get the list for all of them. See, again आपके पास कुछ 2 digits का और 4 digits का ही difference है. Otherwise बाकी सब चीजों में 3 digit में भी, इनफैक्ट यू विल सी 3 digits में भी, लाइक 100, लाइक 123, बहुत ज्यादा डिफरेंस 3 digits में भी या बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं है. Let us see equal to Roman. This is the number. Now I will use the third form, and let me show you the fourth form as well simultaneously. Now I will use the fourth form, which is the simplified version. Again, double click here and double click here. So now you can see the difference. 100 हर जगह सेम है, 99 पहले दो में सेम है, फिर बाकी तीनों में एक साथ है. 123 हर जगह सेम है, बट इफ यू सी दिस बिगेस्ट नंबर 3999, यू विल सी ये हर जगह ये अलग है. इफ आई सी हियर 3999, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी कॉलम. ये एक्सेल का तरीका है अलग अलग तरीकों से रोमन न्यूमेरल्स आपको मेंशन करने का. एंड वी हैव अ शॉर्टकमिंग इन एक्सेल हियर. हम यहाँ पे नंबर 1, 2, 3, 999 को ही एक्सेल में, ये इसमें डेट ले ली है, लेट मी राइट इट एज नॉर्मल टेक्स्ट, लीव इट. हम एक्सेल में सिर्फ नंबर 1 से लेकर 3999 तक को ही हम रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा 4000 को या 4001, 4002 आप नहीं कन्वर्ट कर सकते. सो ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 till number 3999 you can convert to Roman numerals in Excel. That's it, not after that. Okay, so now Roman to Arabic, you use the function equal to Arabic, and Arabic to Roman, you use the function equal to Roman. So we have done this Arabic function here and this Roman function here, Roman from Arabic. Okay. Next function in Excel we have is combine, or another function for it, combine A. ये दोनों हम एक साथ करेंगे, combine and combine A. Now what are these functions? थोड़ा और साइड में चले जाते हैं to understand what is combine and what is combine A. Okay. Before we start this, let me ask you a question. मेरे पास मेरी एक कंपनी है जहां पे 4, लेट्स से जहां पे 6 एम्प्लॉइज काम करते हैं, ABCDEF. मैं आपको बोल रही हूं कि आपको इन एम्प्लॉइज को 2-2 की टीम में डिवाइड करना है. कितने पेयर्स, आप कितनी तरह के पेयर्स में इसमें बना सकते हो? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेयर्स आई कैन फॉर्म अ पेयर ऑफ 2? हाउ मेनी types of 2 pairs, 2 persons pairs I can form from a database or from a total of 6 employees?
मेरे पास 6 एम्प्लॉइज हैं, तो कितनी तरह के पेयर बन सकते हैं? सब कैलकुलेशन कर रहे हो कैसे? कि मैम ए बी का बन सकता है, ए सी का बन सकता है, ए डी का बन सकता है, ए ई ए एफ, सिमिलरली वी कैन हैव बी सी बी डी बी ई बी एफ, देन वी कैन हैव सी डी सी ई सी एफ, काउंट करते रह जाओगे। मैम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, यस, एक्सेल बोलता है सिंपल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करो, विच सेज इक्वल टू कॉम्बिनेशन नंबर मींस कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, मैंने कहा था 6 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं। नंबर चूजन मतलब कितने कितने के पेयर बनाने हैं, 2-2 के पेयर बनाने हैं, ब्रैकेट क्लोज। आप 15 ऐसे पेयर्स बना सकते हो, अलग अलग 15 तरह के पेयर में मैं बना सकती हूँ, विच आई कैन लिस्ट ऑल्सो हेयर। आई कैन राइट 15 पेयर कैसे हो सकते हैं, एक होता है ए बी, एक ए सी, एक ए डी, देन ए ई ए एफ, सिमिलरली कीप ऑन राइटिंग, इस तरह से 15 बन सकते हैं, बी सी बी डी बी ई बी एफ, देन सी डी सी ई सी एफ, देन डी ई डी एफ, एंड आई थिंक हो गए, एक रह गया है which is EF. Okay, EF. Like this, you can have 15 number of combinations. Then what is combin A? अगर कॉम्बिन है तो कॉम्बिन ए क्या है? कॉम्बिन ए है, ये तो चलो एम्प्लॉइज थे। अगर मैं नॉर्मल नंबर्स की बात करूं, इफ आई से इन लेटर्स से, आप ये नॉर्मल एम्प्लॉइज मत सोचो, अब आपके पास समझो कि ये लेटर्स हैं ए बी सी डी ई एफ, नॉर्मल लेटर्स। मैं आपसे बोलती हूँ कि आप कितने पेयर ऑफ लेटर्स ऐसे बना सकते हो, तो आप बोलो कि मैम एक पेयर ए भी हो सकता है, एक बी भी हो सकता है, एक सी हो सकता है, एक डी हो सकता है, एक ई हो सकता है, और एक एफ हो सकता है। मतलब आप बोलो कि मैम ये 6 पेयर हो सकते हैं, तो 15 + 6 आप बोलो 21 पेयर हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप किसी को एज अ रिपीटेशन यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से नंबर 1 to 6 से आप 2-2 के कितने पेयर बना सकते हो, सो इफ यू से मैम 12 के साथ साथ 11 कैन ऑल्सो बी अ पेयर, दैट मीन्स यूजिंग द नंबर 1 twice, then we use the formula combin A where repetitions are allowed. रिपीटेशंस मतलब आप एक ही को 2 बार यूज कर सकते हो। सो कॉम्बिन ए, अगेन यू राइट द नंबर वाज 6 हियर एंड अ पेयर ऑफ 2। अब आप देखो आपके पास यहाँ पे उसने आंसर दिया कि आप 21 ऐसे पेयर बना सकते हो। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन इज कि वहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी रिपीटेशन अलाउड है। दिस इज हाउ द फंक्शन वर्क्स। Okay, now let us come to the next function, that is count if. Count if, although I am explaining you, या बाद में भी करोगे। count if मतलब आपके पास ये बहुत सारा डेटा है, let's say you have some data here, तो count if आपको बताएगा कि वो डेटा क्या है या वो डेटा कितना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता लगाना है कि इस लिस्ट में से, ये जो अरेबिक नंबर्स की मैंने लिस्ट लिखी है, कितने ऐसे नंबर हैं जो 10 से बड़े हैं। मतलब मुझे काउंट चाहिए कि कितने नंबर, मैंने अगर यहाँ पे 50 नंबर लिखे हैं तो 50 में से कितने नंबर 10 से बड़े हैं, या 60 नंबर लिखे हैं तो 60 में से कितने नंबर 15 से बड़े हैं। सो दैट इज वेयर वी यूज द फॉर्मूला काउंट इफ। एक होता है काउंट इफ, एक होता है काउंट ए। काउंट ए होता है कि कितने कॉलम्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है या कितने कॉलम्स ब्लैंक हैं। एक होता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक बताता है आपको कि इसमें से डेटाबेस में से कितने कॉलम ब्लैंक है। अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हियर आई वांट टू राइट काउंट इफ this is my, let's say, range, comma, now it will ask you the criteria. Now what is my criteria? Criteria is, yes, ये फॉर्मूलेज मैम रोमन न्यूमेरल पर क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? रोमन न्यूमेरल्स टेक्स्ट वैल्यू है तो वहां पे आपको काउंट ए वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा, विच विल काउंट द टेक्स्ट। क्योंकि जो रोमन न्यूमेरल्स होते हैं एक्सेल में, एक्सेल उसको नंबर की तरह ट्रीट नहीं करता, एक्सेल उसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है। दैट इट्स अ टेक्स्ट, इट इज एज गुड एज दैट यू राइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज रोमन न्यूमेरल्स। तो एक्सेल ऑलवेज टेक्स दिस रोमन न्यूमेरल्स एज टेक्स्ट वैल्यूज एंड नॉट एज नॉर्मल नंबर्स। तो वहां पे आप सिर्फ एक काउंट ए वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। काउंट ए विल टेल यू कि कितने कॉलम में आपने एक्चुअल में कुछ लिखा हुआ और कितने कॉलम्स में आपने कुछ नहीं लिखा हुआ। सिंपल एज दैट। अदरवाइज आप ये इफ वाला क्राइटेरिया उसमें नहीं लगा सकते।
बिकॉज वो नंबर नहीं है, वो आपके टेक्स्ट की तरह ट्रीट होते हैं. सो काउंट इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10. लेट अस सी, इट हैज गिवन अस 11. सो दैट मीन्स 11 से लेके 123 तक जो काउंट है वो मेरा 11 ही है. ये 11 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यस, दीज आर 11. लेट अस ट्राई व्हाट सुधांशु इज सेइंग. देखते हैं कि वो टेक्स्ट पे इसको लेता है नहीं लेता. लेट अस राइट द सेम फॉर्मूला इक्वल टू काउंट इफ. नाउ माय रेंज इज दिस रोमन न्यूमेरल. नाउ आई एम टेकिंग दिस रेंज, comma, and I want you to count it if this number is greater than 11. Let us see whether it will take it or not. It has given me 0. Why 0? वो कह रहा है यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे तो टेक्स्ट है, तो इसलिए कोई वैल्यू यहाँ पे ऐसी नहीं है जो 11 से बड़ी है, क्योंकि एक्सेल आपके रोमन न्यूमेरल्स को रोमन नंबर्स की तरह नहीं लेता, वो उसको टेक्स्ट की तरह लेता है. दिस इज काउंट इफ. लेट मी राइट, दिस इज काउंट इफ. एक होता है काउंट ए. काउंट ए विल टेल यू कितने कॉलम्स में कुछ लिखा हुआ है. लेट से ये यहां से कुछ डिलीट कर देते हैं. लेट से यहां से मैंने कुछ चीजें डिलीट कर दी. अब आपको पता लगाना है कि ये पूरी सीरीज में कितने कॉलम्स में आपने कुछ लिखा है और कितने कॉलम्स में आपने कुछ भी नहीं लिखा. सो उसके लिए एक तरीका है, यू राइट इक्वल टू, you write count A, you select your range, you close the bracket, press enter, and it will give you कि 17 कॉलम्स में कुछ लिखा हुआ है, बाकी के कॉलम्स में कुछ नहीं लिखा. अगर आपको इसको रिवर्स तरीके से यूज करना है, मतलब कितने कॉलम्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसके लिए आप काउंट ब्लैंक यूज करते हो, इक्वल टू काउंट ब्लैंक. अगेन आई सेलेक्ट माई रेंज, I close the bracket, I press enter, so it will give me कि 4 कॉलम्स में कुछ नहीं लिखा हुआ. और as we know हमने यहाँ पे 21 ही वैल्यूज लिखी थी, तो 17 में लिखा है और 4 में नहीं लिखा. सो ये 3 फंक्शंस हैं, काउंट इफ, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक. ओके, so this is done. I hope no problem here. Till now we have done this absolute function. ये छोटे छोटे functions हैं जो याद करने थोड़े मुश्किल है, इसलिए मैंने आपके साथ ये लिस्ट शेयर कर दी है. But if you know then you just type it equal to, you just type it and you will know. बहुत simple to use है. इसमें ऐसे कोई ifs and buts नहीं है कि बहुत VLOOKUP की तरह में देखना पड़ेगा कि हमारा रिजल्ट वेक्टर कौन सा है और ये कैसा है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. Simply you can use this functions. So ये absolute, Arabic, then Roman, combination A, count with criteria and sign function, we have used this. Now one function is even. Even एक है और एक है odd. ये क्या function है? Again very simple function. Let us see. Even right, let us write odd here. Suppose आपके पास एक नंबर है 14.1356. मैं आपको बोलती हूँ यू राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट पॉसिबल इवन इंटीजर, और यू राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट पॉसिबल ऑड इंटीजर. मतलब पहले मैंने बोला कि 14.156 को राउंड ऑफ करो, बट इस तरह से राउंड ऑफ करो कि मेरे पास एक इवन नंबर ही आए. दूसरा मैंने आपको बोला 14.156 को राउंड ऑफ करो, बट ऐसे राउंड ऑफ करो कि मुझे एक ऑड नंबर मिले, मुझे इवन नंबर ना मिले. इस तरह की आपके पास लेट से बहुत बड़ी रेंज है, 13.987, लेट से 11.897 और 11.134. इन नंबर्स को अगर आपको इवन वे में राउंड ऑफ करना है, यू वांट एन इवन इंटीजर, सिंपली यू राइट इक्वल टू इवन, round the positive number up and negative number down to the nearest even integer. So this is even. I select this number, I press enter, it will give me 16. क्योंकि ये positive number था, so it will be rounded up. अगर यही number negative होता, it would have been minus 14.1356. और यहाँ अगर आप equal to even use करते, तो ये आपको -16. Okay, it has given me -16 only here. Equal to, let's say what the formula says, round the positive number up and a negative number down to the nearest even integer.
Okay, let us see it again. Similarly, you can use the odd formula, equal to odd. It will give you the odd number related to this. You press enter. इसने इसको राउंड अप करके आपको ऑड नंबर दे दिया है एंड आई ड्रैग इट हियर. So for 13.987 it is 14, for 11.897 it is 12, for 11.134 it is again 12. Similarly odd में ये आपको इनसे बड़ा odd number देगा. Like for 14 also it is 15, for 13 also it is 15, for 11 also 13, and for 11.134 it is 13. Let us see what happens if these numbers are negative. Minus 13.987, then minus 11.897, then minus 11.134. I write equal to even here. Logically it should give me okay, it has returned me the same value only with a negative sign. That's it. Yes, because in case of negative number, minus 16 is less than minus 14. That is why it is saying that it is rounding it downwards, because minus 14 से छोटा minus 16 होता है. Similarly, it has rounded it up now, we will say, क्योंकि minus 15 again minus 15 छोटा है and minus 14 जो है वो बड़ा है. That is why it says that it is rounding it down, क्योंकि negative integers में it is vice versa. So this is how you can round off a number. Although Excel में normal राउंडिंग ऑफ फंक्शंस भी अवेलेबल हैं. अगर आपको इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ नंबर्स को राउंड अप या राउंड डाउन करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो इन एक्सेल. ये इवन ऑड वाले फंक्शन सिर्फ तभी यूज में आते हैं जब आपको नियरेस्ट पॉसिबल इवन इंटीजर या नियरेस्ट पॉसिबल ऑड इंटीजर चाहिए. स्पेसिफिकली आपको बोला है कि नहीं, राउंड ऑफ करके इवन नंबर ही आना चाहिए या राउंड ऑफ करके ऑड नंबर ही आना चाहिए. ऑल्दो आई डाउट कि ये फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा कहीं यूज होते होंगे, but still Excel has given us these functions. Okay, now two very interesting functions in Excel, e raised to the power and simple एक function है हमारे पास which is power. Where it is? I have written it somewhere. Yes, raised to the power. Here it is. आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी थी कभी बहुत पहले, उसमें पढ़ा होगा ई रेस टू द पावर 17 की क्या वैल्यू है, ई रेस टू द पावर 23 की क्या वैल्यू है, ई रेस टू द पावर 1 की क्या वैल्यू है. या फिर आपके पास कोई नंबर है, लेट्स से आई से tell me what is 14 square. You can easily tell me, ma'am, 14 into 14 196. But if I tell you what is 14 raised to the power 14, तो आप कैलकुलेटर पे या तो 14 को 14 बार मल्टीप्लाई करो. व्हाट इफ आई से 14 रेज टू द पावर 200, 14 रेज टू द पावर 199. सो दिस फंक्शंस आल्सो कैन बी परफॉर्म्ड इन एक्सेल. एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक होता है पावर फंक्शन. सो इन एक्सेल वन वी हैव exponential function and for one we have the power function. What is this? Exponential function आपको बताता है किसी भी चीज के लिए what will be e raised to the power. मतलब you type equal to exponential, it will ask you one number only, क्योंकि उसको पता है जो भी नंबर आप बोलोगे वो आपको बताएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट 7 हियर, सो इट विल टेल यू e raised to the power 7 का आंसर क्या होगा. इफ यू राइट 1 हियर, इट विल टेल यू e raised to the power 1 का आंसर क्या होगा. So e raised to the power 1 is 2.718. If I write equal to, let's say, exponential, I want e raised to the power 0 का आंसर. E raised to the power 0 का आंसर, as we know, it is always 1. E raised to the power 0 is 1. So you can find out in Excel for anything कि e raised to the power, if I write, let's say 171 here. Let me see. Yes, बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए इसने मुझे यहाँ पे ये प्लस साइन कुछ लिख के दे दिया है. ये e जहाँ पे भी आ जाता है ना, अगर e के बाद प्लस है तो दैट मीन्स वो नंबर बहुत बड़ा है, और अगर e के बाद माइनस है दैट मीन्स वो नंबर बहुत छोटा है. इफ आई कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू नंबर, then it will give me the numeric value of the same. इसको आपको बहुत एक्सटेंड करना पड़ेगा. इतनी बड़ी वैल्यू है ये, सी इतनी बड़ी वैल्यू है e raised to the power 171. It is just short this.
ओके, पावर का मतलब होता है अब आपको ई रेज टू दी पावर नहीं चाहिए, अब आपको किसी नंबर की पावर चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू पावर, पावर मीन्स नंबर. लेट से मुझे चाहिए 17 रेज टू दी पावर 9. So 17 is the number, 9 is the power, close the bracket, press enter. Again it's a very big number, that is why the plus sign is here. Equal to, let's say again use power, I say 14 raised to the power 0, let's say. Anything raised to the power 0 is 1. This rule we know. Equal to power, let's say I write 2 raised to the power 4. So it will give you the number 16. So this is how this exponential and power functions can be used in Excel. So this is the exponential function. Very simple functions to use, and this is the power function, returns the value of a number raised to a specific power. Now, what about rest of the functions? Again, two more interesting functions which we can discuss in detail. Factorial and double factorial. Any one of you who remembers what do we mean by factorial? Let's say if I say you, what is 3 factorial? Can anyone give me the answer? What is 3 factorial? 6. 6 or 8? Think again. 6. 6, right, because it is 1 into 2 into 3. What is 5 factorial? It is 1 into 2 into 3 into 4 into 5. ये तो छोटे छोटे terms थी. What is 20 factorial? What is 40 factorial? What is 99 factorial? Again, go to Excel, simple. Let me write factorial here. Simple, write equal to fact. Write the number for which you want the factorial. For example, if I want 19 factorial, and it will give you, again it's a very big number, that is why it is giving you the plus sign. इसको change करने का एक ही तरीका है, ये ऊपर जहाँ पे जनरल लिखा हुआ है इसको स्क्रॉल डाउन करो और इसको नंबर सिलेक्ट कर लो, तो ये आपको एग्जैक्ट नंबर आपका आंसर में दे देगा. कोई छोटा नंबर लिख के देखते हैं. इक्वल टू फैक्टोरियल, आई वॉन्ट लेट्स से 11 का फैक्टोरियल. इट इज 399168000. ऐसे ही एक्सेल में एक होता है डबल फैक्टोरियल. अब डबल फैक्टोरियल का जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है उनको शायद पता होगा, अदरवाइज डबल फैक्टोरियल का नंबर मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट 5 फैक्टोरियल और इफ यू वांट 7 फैक्टोरियल, then starting from 1 ending till the number, it will multiply only the odd numbers. If you are doing 5 factorial or any factorial of a odd number, it will multiply only the odd numbers. And if you are saying some even number, let's say 6, then till 6 it will multiply only the even number. For example, if I say 15, then till 15 like 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सिर्फ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मुझे इनका फैक्टोरियल देगा. Similarly, if I write 16, then now it will give me 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. Let us see the answer. एक बार इसको प्रोडक्ट वाले फंक्शन से देखते हैं कि हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा. इक्वल टू प्रोडक्ट, मुझे इन सब नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए. इक्वल टू प्रोडक्ट, अगेन मुझे इन सब नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए. नाउ रादर देन डूइंग दिस, अगेन इट्स अ बिग नंबर, let us convert this into number only. Again, if I do not want to use this, I can simply use here double factorial. Equal to, I will say double fact double, equal to fact double, and I write 15 here, bracket close, enter. See, it has given me same values, 2027025, 2027025. Equal to fact double, I write 16 here, bracket close, 103219220, 103219220. So factorial double means जो भी नंबर आपने लिखा है अगर वो odd है तो odd numbers का multiplication till that number, अगर वो even है तो even number का multiplication till that number. So this factorial is done, this double factorial is done, and
In this I have also told you how to use the product function. Product function बहुत simple है, I need not explain this. Equal to product, जिन भी number का product चाहिए आप उनको select कर लो. Similarly you have sum function. Sum function is also very simple. जितने भी चीजों का आपको sum चाहिए आप उनका sum कर लो. एक फंक्शन होता है आपका सम प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज दिस सम प्रोडक्ट फंक्शन? सम प्रोडक्ट फंक्शन मींस अगर आपके पास दो सीरीज हैं, आई हैव दिस सीरीज 1 2 3 4 5, लाइक ये मेरे पास कुछ एडजेसेंट सीरीज है. ये सम प्रोडक्ट फंक्शन ना आपके स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में बहुत काम आता है. फॉर एग्जांपल यू आर कैलकुलेटिंग द मीन, जिसमें आप करते हो एफ, देन यू कैलकुलेट एक्स, देन यू से सिग्मा एफ एक्स. सिग्मा एफ एक्स का क्या मतलब होता है कि सारी एफ सीरीज को उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स सीरीज से पहले मल्टीप्लाई करो और फिर आप उसका सिग्मा निकालो तो आपके पास हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स. इसके लिए हम सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करते हैं. इक्वल टू सम प्रोडक्ट. ये आपसे पूछेगा एरे वन मतलब ये मेरा एरे 1 है, कॉमा एरे 2 ये मेरा एरे 2 है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. ये 744 का मतलब क्या है? इधर 1 into 2 plus 3 into 4 plus 5 into 6 plus 7 into 8. So sum product will first multiply the digit with its corresponding digit and will then add up all those things. That is sum product function in Excel. Again, not a very difficult function, very easy to understand. So done. Okay, then you have 3 functions, round, round up, round down. Again very simple. आपके पास बहुत सारे numbers हैं. Let's say you have 14.14, 14.11, 14.65, 14.99, 14.78. You can use, मैंने आपको बोला इनको राउंड ऑफ करो. एक तो है नॉर्मल राउंड, एक है ऑलवेज राउंड अप, हमेशा ऊपर ही जाना है चाहे पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट हो. एक होता है राउंड डाउन, हमेशा नीचे ही जाना है चाहे पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट हो. सिंपल फॉर्मूलेज. इक्वल टू राउंड. राउंड मींस पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप उसको राउंड ऑफ करो, कॉमा इट विल आस्क यू द नंबर डिजिट्स. नंबर डिजिट्स मतलब कितनी प्लेसेस तक उसको राउंड करना है. आप डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं चाहते, यू वांट 0 और यू वांट सम डिजिट, यू वांट 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, यू वांट 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल. सो दैट इज व्हाई यू स्पेसिफाई नंबर डिजिट्स. मैं कह रही हूँ मुझे कोई डेसिमल नहीं चाहिए, आई वांट 0. प्रेस एंटर. सो 14. Even I know 14.14 will be 14 only, but 14.65 is 15. 14.99 is 15. If you use round up, अब round up में आपके पास चाहे कोई भी नंबर हो, again I want 0 as my decimal places, वो आपको हमेशा 15 ही देगा क्योंकि उसने उसको round up कर दिया है. Similarly, if you will use round down, वो आपको 14 ही देगा क्योंकि आप उसको राउंड डाउन कर रहे हो. सो इट विल ऑलवेज गिव यू 14. सो वेयर एज द राउंड फंक्शन विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर, राउंड अप विल ऑलवेज गिव यू 1 more and round down will always give you 1 less, that is 14 itself. So these are the 3 functions which can be used as per the convenience, normally used in the in calculating the salary or in calculating the marks. We use them in calculating the marks. For example, किसी बच्चे के 23.5 हैं या 23.7 हैं, something like this. अगर आपके मार्क्स इस तरीके से हैं, so we use this round off function. हम अपनी मर्जी से अपने रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उसको राउंड अप कर सकते हैं, उसको राउंड डाउन कर सकते हैं. So this is how Excel में आप ये तीनों functions use कर सकते हैं. Okay. Now two very interesting functions, greatest common divisor and lowest common multiple. दो functions 5th 6th क्लास के बच्चों के लिए शायद बहुत बहुत यूजफुल हैं. जो randomly क्वेश्चंस आपने देखे होंगे 5th 6th क्लास में, क्वेश्चंस कैसे होते थे? Find the LCM for the following numbers. Find the greatest common divisor for the following numbers. By the way, what is LCM and what is greatest common divisor? कोई फटाफट बता सकता है? LCM क्या होता है और GCD दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब
एक रेंज ऑफ नंबर्स का सबसे लीस्ट मल्टीपल, सबसे लोएस्ट ऐसा मल्टीपल जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो, दैट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. एंड जीसीडी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब एक ऐसा नंबर जो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो आपकी स्पेसिफाइड नंबर्स को सभी को डिवाइड कर सके. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू, simply if I am asking you what is the greatest common divisor for the number 2, 4 and 6, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, 2, 4 एंड 6? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर? कम ऑन, आई थिंक दिस इज इजी इनफ. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं पता, कोई बात नहीं, एक्सेल में कर लेते हैं. 2. यस सुधांशु, यू आर राइट, इट इज 2. एक बार इसको एक्सेल से हम वेरीफाई कर लें. Equal to GCD. This is greatest common divisor. And you simply write your number 2, 4, 6, bracket close. The answer is 2. So ऐसा number जो तीनों को divide कर दे without leaving any remainder is 2. Similarly, if I want equal to GCD, that is the greatest common divisor, मुझे चाहिए कि ऐसा number जो 14, 88 एंड लेट्स से 1, 5, 6, 4, इन चारों को डिवाइड कर दे. अगेन 2 क्यों? मतलब इसका मतलब ना ही ये 4 से डिविजिबल है, ना ही 6 से, ना ही 8 से, तो 2 इज द आंसर. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सॉरी, इक्वल टू GCD. लेट मी से आई एम राइटिंग 3, 33, 66, 666. So 3. So greatest common divisor will give you this. LCM बिल्कुल सिंपल होता है, इक्वल टू LCM. आपको किन्हीं भी नंबर्स का LCM निकालना है. LCM हम निकालते थे लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लेट्स से आई वांट टू टेक द LCM ऑफ 14, 17, 19, 45. तो इट इज 203490. ये ऐसा नंबर है जो इन सब को एक साथ डिवाइड कर सकता है. इक्वल टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM. आई वांट द LCM फॉर 2 and 4. क्या होगा 2 और 4 का LCM? 8. 4, not 8. Sorry. Yes. So आपको एक्सेल इस तरह के आंसर्स एक बार में सिर्फ हमें लिखने की जरूरत है एंड इट विल गिव मी द आंसर. एक फंक्शन है इंटीजर, ऑल्दो अगेन नॉट वेरी यूजफुल, बट स्टिल वी हैव इट. लेट अस राइट इट हियर. इंटीजर कुछ भी नहीं है. आपके पास ये एक सीरीज है 14.14. लेट से नीचे और नंबर्स लिख देते हैं. 15.11, 17.18. मैंने आपको एक सीरीज दी और मैंने बोला डेसिमल के बाद की सारी चीजें छोड़ दो, मुझे सिर्फ डेसिमल से पहले वाला नंबर चाहिए, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं चाहिए, बस सिंपल जो डेसिमल से पहले लिखा है वो लिख के दे दो मुझे. मतलब मेरा आंसर हर जगह 14, 14, 14, 14, 14, 15, 17, ये आंसर मुझे चाहिए विदाउट राउंडिंग इट ऑफ. तो आप इंटीजर फंक्शन यूज करते हो. इंटीजर फंक्शन मतलब व्हेन यू वांट ओनली द इंटीजर पार्ट ऑफ अ नंबर एंड यू वांट टू इग्नोर द डेसिमल पार्ट विदाउट राउंडिंग इट ऑफ, व्हेन यू डू नॉट वांट एनी राउंडिंग ऑफ. सो इक्वल टू इंटीजर INT, the number is this, bracket close, enter, and it will give you the, you see it has given you only the integer part and not the decimal part. और इसने कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करी है. 15.11 है तो भी 15 है, 14.99 है तो भी 14 है. So without rounding it off, it has just simply given me the integer portion. So this is the integer function. Okay. रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, तीन चीजें होती हैं. एक होता है, 3 से भी 4 बोलूंगी मैं. एक होता है क्वोशिएंट, एक होता है रिमाइंडर, एक होता है डिवाइजर, एक होता है डिविडेंड. फटाफट से कोई बता सकता है क्या होता है रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिवाइजर, डिविडेंड? वेरी क्विकली, बहुत ही सिंपल है. क्वोशिएंट का आंसर होता है.
क्वोशंट आंसर होता है, राइट। रिमाइंडर बचता है लास्ट में, जो लास्ट में बचता है। डिवाइजर जो ब्रैकेट के अंदर होता है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है। अच्छा। डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है। सो इफ आई से 2 डिवाइडेड बाय 4, then 2 is the dividend because you are dividing 2 by 4, so 4 is the divisor. If I say 4 divided by 2, then 4 is the dividend and 2 is the divisor. अब एक्सेल में आपको कोई बोलता है कि किसी भी चीज से को डिवाइड करके आपको 2 चीजें मेन होती हैं जो बतानी होती हैं। एक आपको बताना होता है किसी भी चीज का क्वोशंट, कि मतलब आंसर क्या आया आपका, और एक होता है रिमाइंडर। डिवाइजर और डिविडेंड तो पता ही होगा ना, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन में ही मेंशन होता है। आपको आंसर क्या निकालना होता है, एक होता है क्वोशंट का आंसर और एक होता है रिमाइंडर का आंसर। सो क्वोशंट और रिमाइंडर फंक्शन एक्सेल में इनबिल्ट होते हैं। सपोज आई वांट इक्वल टू क्वोशंट, इट विल आस्क यू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर का मतलब होता है कि क्या चीज डिवाइड हो रही है, दैट मींस द डिविडेंड, और डिनोमिनेटर होता है क्या चीज से आप डिवाइड कर रहे हो, दैट मींस द डिवाइजर। सो लेट्स से इफ आई एम डिवाइडिंग 45 बाय 3, तो आई नो माई आंसर वुड बी 15। 15 इज द क्वोशंट, बट अगर इसी चीज का मुझे रिमाइंडर चाहिए जो कि 0 होगा, तो आप रिमाइंडर फंक्शन यूज करो, इक्वल टू remainder. Okay, what is the remainder function? Let us look at the syntax once. So for remainder function I have mod. Okay, remainder function equal to remainder लिख के नहीं आएगा, it will be equal to mod number and the divisor. Now what would be the number here? Number is 45 because that is being divided and it is being divided by 3. 3 is the divisor here. ब्रैकेट क्लोज एंड यू गेट द रिमाइंडर एज 0। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने 45 को 3 से डिवाइड किया था इधर, तो 45 was the numerator and 3 is the denominator. Now let me say I want to divide any number which is not completely divisible. Let's say 136 divided by 3. So what would be the quotient? Equal to quotient, न्यूमरेटर इज 136, डिनोमिनेटर इज 3। ये आपको पॉइंट्स में कभी भी नहीं देगा। ओके, आई थिंक यस, ये आपको पॉइंट्स में कभी भी आंसर नहीं देगा। जितना रिमाइंडर आपका बचेगा वो आपको अलग से पता चलेगा। इक्वल टू मॉड, लेट्स से इफ आई से मॉड द नंबर इज 136 एंड द डिवाइजर इज 3 अगेन हियर, सो द रिमाइंडर इज 1। सो क्वोशंट और रिमाइंडर वाले फंक्शंस भी एक्सेल में आपको दिए हैं, इजीली यू कैन यूज देम, नो नीड टू डिवाइड एनीथिंग, नो नीड टू गेट योर आंसर इन पॉइंट्स, सिंपली यू कैन यूज दिस फंक्शन। ओके, देन दिस इज अ पाई फंक्शन, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। कहीं पे भी जाओ एक्सेल में, एक्सेल में कहीं पे भी जाओ, लिखो इक्वल टू पाई। पाई क्या होता है भाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। यस मैम। पूरी वैल्यू पता लगानी हो एक्सेल में चले जाओ, इसको करते रहो ड्रैग। ये सिर्फ आपको कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पाई की वैल्यू दे देगा। यू कन्वर्ट दिस इनटू नंबर, तो ये सिर्फ 3.14 दे देगा। लेट्स सी क्या मैं इसकी डेसिमल प्लेसेस बढ़ा सकती हूँ। यस, आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जितनी मर्जी डेसिमल प्लेसेस बढ़ा लो, ये आपको सिर्फ ये आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेसिमल या 15 डेसिमल प्लेसेस तक ये आपको पाई की एग्जैक्ट वैल्यू एक्सेल बता देगा। सो कभी भी एक्सेल पे जाके आप ये वैल्यू देख सकते हो। दिस फॉर्मूला विल ऑलवेज रिमेन सेम, नथिंग डिफरेंट हियर। सो इट रिटर्न्स, सिंपली रिटर्न्स द पाई वैल्यू, दैट्स इट, नथिंग एल्स इट डज। ओके, अब एक होता है स्क्वायर रूट और एक होता है स्क्वायर रूट पाई। ये क्या होता है स्क्वायर रूट? यू ऑल ऑफ यू नो, आपके पास लेट्स से नंबर है 49, यू हैव 139, लेट्स से 196, आई हैव 121। मुझे इनके स्क्वायर रूट जाने, SQRT स्क्वायर रूट, नंबर ब्रैकेट क्लोज, ये 7 का स्क्वायर रूट है 49,
49 का स्क्वायर रूट है 7, 139, अब क्योंकि ये होल नंबर नहीं है तो 11.78, 196, 14, 121, 11। पहले जब आप इसको मैन्युअली करते थे तो वो लंबा सा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके हम इसको करते थे, जिसका हमें डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं पता लगता था। एक्सेल में सिंपली एक फॉर्मूले से पता लग जाएगा। तो दिस इज द स्क्वायर रूट फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं ये सारे। एक होता है स्क्वायर रूट पाई, ये क्या होता है? एंड आई एम नॉट अ मैथ टीचर सो आई डोंट नो व्हेन इट इज यूज्ड। हो सकता है मैथ्स की कुछ कैलकुलेशंस में ऐसा कुछ यूज होता हो। स्क्वायर रूट पाई का मतलब है 49 मल्टीप्लाइड बाय द पाई वैल्यू and then its square root. That means 49 multiplied by 3.14 and its square root. So square root pi means SQRT, square root pi. This is the number, bracket close, enter. Now what it has done is, पहले इसने 49 को pi से multiply किया है और फिर उसके बाद इसका square root किया है. If you want, you can read its explanation also. Square root pi means returns the square root of नंबर इंटू पाई। वो पहले मल्टीप्लाई करता है पाई से और फिर उसका स्क्वायर रूट करता है, स्क्वायर रूट निकालने के बाद मल्टीप्लाई नहीं करता। सो दिस इज स्क्वायर रूट पाई। अगेन एज आई टोल्ड यू, ये कहाँ यूज होता है वो कोई मैथ्स की टीचर ही बता सकती है, बट ये फॉर्मूला एक्सेल में होता है। अब आपको पाई का फॉर्मूला पता है, आपको स्क्वायर रूट पता है, तो आपको स्क्वायर रूट पाई भी पता है। ओके, नाउ 3 फंक्शंस लेफ्ट, रैंडम नंबर एंड रैंडम बिटवीन, और एक है ट्रनोकेट्स। ओके, रैंडम नंबर कुछ नहीं है, इक्वल टू मैंने लिखा रैंडम, ब्रैकेट क्लोज, अंदर कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लिखना आपको, एंटर। ये आपको एक रैंडम नंबर दे देगा, एनी रैंडम नंबर। कीप ऑन जस्ट drag it down, it will give you a list of random numbers. ये आपको okay, it will give you some random numbers. Again, if I write random, bracket close, enter, it will give me again some random numbers. अब ये हमेशा मुझे 0.07 इस तरह से नंबर्स क्यों दे रहा है? मैं चाहती हूँ कि मेरे रैंडम नंबर्स ना 100 से 200 के बीच में ही चाहिए मुझे, या 300 से 400 के बीच में ही चाहिए मुझे। सो फॉर दैट यूज द फॉर्मूला रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन मतलब कि आपको लोएस्ट रैंडम नंबर कौन सा चाहिए और हाईएस्ट रैंडम नंबर कौन सा चाहिए। सो आई वांट माय रैंडम नंबर्स बिटवीन 100 टू 200, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखो 114, 123। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो, जैसे ही मैं एक्सेल पे कुछ भी कर रही हूँ ना, सपोज मैं इसको और ड्रैग करती हूँ तो मेरा ये वाला जो नंबर है या ये वाले जो नंबर्स है ना, ये भी चेंज हो रहे हैं। सो रैंडम नंबर, सबसे पहले तो रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, आपको कोई भी लिस्ट जनरेट करनी है रैंडम नंबर्स, तो वो आप एक्सेल में कर सकते हो। आप उसमें ये भी डिसाइड कर सकते हो कि रैंडम नंबर्स जो है ये कौन से वैल्यू से लेके कौन से वैल्यू तक होने चाहिए। लेकिन वो रैंडम नंबर्स व्हेनेवर यू विल डू एनीथिंग इन एक्सेल, वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे क्योंकि वो रैंडम नंबर्स हैं, वो एज इट इज आपने नहीं लिखे हैं वहां पे, वो एक्सेल आपको रैंडमली दे रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, होती है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि रैंडमली आपने किन्हीं भी लोगों को चूज किया और अपना क्वेश्चनियर भरवाया। सिमिलरली रैंडम नंबर्स क्या होते हैं कि आपने कोई भी एक्सेल को बोला कि इतने से इतने में मुझे कोई भी रैंडम नंबर्स दे दो। तो ये कैसे आप इसको रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 200 लोगों की लिस्ट है और आपके पास 200 तंबोला टिकट्स है जिनके ऊपर नंबर लिखे हैं 1 to 200। आप एक्सेल में जाओगे, उन सब नामों के आगे आप लगाओगे इक्वल टू रैंड बिटवीन 1 to 200। रैंडमली एक्सेल ने पहली बार में आपको जिसके आगे जो नंबर दिया, आपने उसको वो टिकट दे दी। सो दिस इज हाउ दिस रैंडम बिटवीन फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन एक्सेल। मैथमेटिकली भी इसका कुछ ना कुछ डेफिनेटली यूज हो सकता है। So this is how you use random function and random between function. Okay, last function is truncates, returns the number by removing the decimal or the fraction part. Now it is more or less similar as the integer function. The integer function also gives me the integer part only. Similarly, ये जो truncates function होता है, we call it as truncates.
इसमें भी मोर और लेस सिमिलर ही है विद सम डिफरेंस हियर एंड देयर. व्हाट इज द डिफरेंस? इट विल आस्क यू कि क्या आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक डेसिमल प्लेस चाहिए या नहीं चाहिए. सो इक्वल टू trunk, this is the number, comma, it will ask you कि क्या आपको डेसिमल प्लेस चाहिए. लेट्स से इफ आई एम सेइंग मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, एंटर. So it will give you 14.1. Again, read this. 17.1, 15.1, 14.7. It will give you these numbers. Okay. One specific thing here is, if I write here -1, let's say, it has given me 10. जैसे ही मैंने -1 लिखा, इसने मुझे 10 दे दिया आंसर. हर जगह इसने मेरा आंसर 10 कर दिया. 10 कैसे कर दिया भाई? अगर मैं ये नंबर लेट्स से यहाँ पे 24 कर दूंगी ना, तो ये आंसर 20, सॉरी नॉट दिस नंबर, हैव आई सिलेक्टेड दिस सीरीज? नो. अगर मैं ये नंबर यहाँ पे 24.14 कर दूंगी ना, तो ये आंसर 20 हो जाएगा. लेट्स से दिस इज 34.15, तो ये आंसर आपका 30 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, -1. अब इसका क्या मतलब होता है? आप यहाँ पे अगर -1 की जगह, लेट्स से दिस नंबर इज 155.16. अब अगर मैं -1 की जगह -2 कर दूंगी, देन इट विल गिव मी 100. सिंपल मतलब है, एक्सेल में क्या किया इसने, डेसिमल्स हटा के, अगर आपने 1 2 3 लिखा है तो आपको वो उतने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देगा. लेकिन जब आप -1 -2 लिखने लग जाओगे, तो व्हाट इट विल डू इज, वो डेसिमल को पूरी तरह हटा देगा, और लास्ट के जितने भी आपने नंबर बताए हैं, आपने -1 बोला है तो वो लास्ट की एक डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर देगा. आपने -2 बोला है तो वो लास्ट की 2 डिजिट्स को 0 में कन्वर्ट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट हेयर 1 5 6 7 8, and if I say equal to trunk, this is the number, comma, I am writing -3. So now it will give me 15,000 as the answer C, क्योंकि इसने इसकी लास्ट 3 डिजिट्स को 0 में कन्वर्ट कर दिया. अगेन अ फंक्शन which we can never imagine where it can be used, but yes, obviously if the function is there, definitely it can be used somewhere. एक्सेल में जितने भी अपग्रेडेशन आते हैं, जितने भी ये फंक्शन यूज होते हैं, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये फंक्शंस आपके डेवलप होते हैं. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 30 मैथमेटिकल फंक्शंस ऑफ एक्सेल. एनी प्रॉब्लम इन द मैथमेटिकल फंक्शंस? Okay, so I want to take extra 15 minutes today because I want to complete this date functions topic as well. There are 18 functions which will not take more than 15 minutes. Again, I am repeating because very simple date functions हैं Excel में. Date and time functions. Date and time functions means Excel में आप कैसे date और time बता सकते हो. सबसे इजी फंक्शन सबसे पहले करते हैं. लेट्स से आई एम राइटिंग सम रैंडम डेट्स हियर. 1st January 2021, लेट्स से 3rd September 2020, लेट्स से 9th August 2021, okay, 19th March 2020. Anything I have written some randomly, I have written some 4 dates here. एक फंक्शन होता है एक्सेल में डे का. डे फंक्शन मीन्स इट सिंपली रिटर्न्स द डे पार्ट फ्रॉम द डेट. इट इज अ नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 31. मीन्स इफ यू राइट इक्वल टू डे ब्रैकेट, ओके, इक्वल टू डे, सीरियल नंबर मीन्स कौन सी डेट. एक्सेल हमेशा डेट की जगह आपको सीरियल नंबर लिखेगा, क्योंकि एक्सेल डेट को सीरियल नंबर के फॉर्मेट से समझता है. तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना. आप सिंपली ये सेल सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर प्रेस कर दो. सी, बिकॉज इट वाज 1st January, सो एक्सेल हैज रिटन 1 हियर.
Drag it down, it will give you 3, 9 and 19. See, it has given you 3 here, 9 here, 19 here. So this is how you can return the day. आपको एक पर्टिकुलर डेट से, आपके पास बहुत सारी डेट्स हैं और मैं आपको बोलती हूँ मुझे सिर्फ तारीख बताओ, महीने से या ईयर से मुझे कोई मतलब नहीं है. यू कैन सिंपली यूज इक्वल टू डे. यू सिलेक्ट द पर्टिकुलर डेट और सिलेक्ट द पर्टिकुलर सेल फ्रॉम विच यू वांट द डे एंड यू विल गेट इट इन एक्सेल. इसी तरीके से एक्सेल में जैसे डे का फंक्शन होता है वैसे ही होता है इक्वल टू वैसे ही होता है मंथ का फंक्शन. अगेन सिंपली व्हाट यू डू इज राइट इक्वल टू मंथ हेयर, सिलेक्ट द डेट, क्लोज द ब्रैकेट. अब ये आपको मंथ बता देगा. ये था फर्स्ट मंथ, उसके बाद आपका है 9th मंथ, फिर है 8th मंथ, फिर है 3rd मंथ. तो जैसे आपको डे पता चल सकते हैं एक्सेल में, वैसे ही मंथ पता चल सकते हैं. और इसी तरीके से आपको एक्सेल में ईयर भी पता लग सकते हैं. इक्वल टू ईयर, सिलेक्ट द डेट, कौन सा ईयर है एक्सेल आपको बता देगा. इसमें है 2021, इसमें है 2020, 2021, 2020. तो मैंने अपने डे को, मंथ को, ईयर को अलग अलग कर दिया एक्सेल में विदाउट राइटिंग इट डाउन मैन्युअली. सो this is the day function in Excel, this is the month function in Excel and this is the year function in Excel. एक सिंपली ये जो डेट फंक्शन होता है, इट रिटर्न्स यू द डेट. अगर आपको इस तरीके से डेट लिखने में प्रॉब्लम है, 01/01/2021, आपको ऐसे नहीं लिखनी डेट, नो प्रॉब्लम. यू राइट इक्वल टू डेट. अब आप ब्रैकेट में लिख दो ईयर, लेट्स से 2021, मंथ लेट्स से दिसंबर, डे लेट्स से अगेन दिसंबर, ब्रैकेट क्लोज. और इसने आपको इसी फॉर्मेट में एक्सेल में डेट दे दी. अब फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपने ये डेट टाइप नहीं करी है, आपने एक्सेल में अपने आप ऑटोमेटिकली एक फंक्शन के थ्रू ये डेट आपने लिखी है. आई एम ड्रैगिंग दिस अगेन डाउन. ओके, so this is the date function. Now one function in Excel is it is, let's say, today. Now what is today? आज की डेट क्या है मुझे बताओ. मुझे नहीं पता आज की डेट क्या है, एक्सेल बता देगा. इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. दिस इज द डेट टुडे, 20th September 2021. यही डेट है आज, 20th September 2021. एक्सेल ने मुझे खुद बता दी. अब मैंने यहाँ पे ना ही डेट का फॉर्मूला लगाया, ना ही मैंने यहाँ पे डेट खुद टाइप करी. मैंने सिर्फ करा इक्वल टू टुडे एंड एक्सेल हैज गिवन मी द आंसर. एक होता है डेज. एक्सेल का एक फंक्शन है डेज. डेज मीन्स मुझे काउंट करके बताओ कि इन दोनों डेट्स के बीच में कितने डेज आ रहे हैं. Let's say equal to, this will give you the count of days between two particular days. Equal to days, it will ask you कि ending date क्या है. Let's say ending date is this, comma, starting date क्या है. Let's say starting date is this, bracket close, enter. That means -120. Why -120? क्योंकि मैंने एंडिंग डेट जो ली वो तो मैंने ली 2020 की, और जो मैंने स्टार्टिंग डेट ली वो मैंने ली 2021 की. मतलब -120 डेज, बिकॉज आई एम गोइंग बैकवर्ड. मैं 2021 से 2020 में जा रही हूँ. सो द आंसर इज 120, बट इट इज माइनस क्योंकि वो मैंने बैकवर्ड काउंट कर लिया. अगर आप इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दोगे, so this is 340. Now what is 340 here? 340 is the difference between this 9th August 2021 is the ending date and 3rd September 2020 is the starting date. Now here it is 20th September 2021 is the ending date and 12th December 2021 is the starting date, and it has given me minus 4459. Let us write it in our own language. Equal to days, ending date is this, comma, starting date is this, enter.
-83। ओके, वो जो आंसर उसने दिया था वो उसने नीचे ब्लैंक वाले कॉलम को लेके दिया था, विच इज नॉट देयर, दैट इज वाई उसने वहां पे मुझे एक अजीब सा नंबर दे दिया था। सो डेज सिंपली टेल्स यू द नंबर ऑफ डेज विच आर देयर बिटवीन टू पर्टिकुलर डेट्स। नाउ नेक्स्ट फंक्शन वी हैव डेज 360। डेज 360 का भी बिल्कुल सेम यूज होता है। It will also give you the number of days between two particular dates, with the only difference it will take the year as a, it will take all the months as a 30-day month. ये हर महीने को 30 दिन का बनाएगी, फिर चाहे वो फरवरी हो, चाहे वो मार्च हो, चाहे वो सितंबर हो, चाहे वो दिसंबर हो। Days 360 means 360 days in a year, 12 months. So a 30-day month will be there. It will count as all the months as a 30-day month. So what is days 360? Let us see. Equal to days 360. The starting date, अब ये पहले आपसे starting date पूछेगा. Now this is the starting date, comma. This is the ending date, bracket close, enter. It will give you -118. यहाँ से दो कम, क्यों? यहाँ -120 था, यहाँ -118 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने नॉर्मल 31 डेज काउंट किए थे, जबकि डेज 360 में ऐसा कुछ भी काउंट नहीं किया है, उसने सबको इक्वली काउंट किया है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट योर आंसर इन एक्सेल। ये यहाँ पे 633 था, ये 623 है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक्सेल ने अब आपके सारे मंथ्स को 30 डे मंथ काउंट किया है, उसने 31 days या 28 days उसने नहीं लिए। So this function days 360 in Excel. Okay. E date, E month. Again, very important functions in Excel. ये आपके लिए फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, E date and E month. Now what is this E date and E month? आप सबने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट शायद किसी ने पढ़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला है कि ये आज की डेट है और आपको इतने टाइम पीरियड बाद ये पैसे वापस करने हैं, या इतने टाइम पीरियड बाद इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। वो मैं कैसे बताती हूँ आपको? मैंने आपको बोला 20 सितंबर 2021 को मैंने आपको लोन दिया, आपको 12 महीने बाद ये लोन रिटर्न करना है। सो एक्सेल विल टेल यू कि इस डेट के इतने महीने बाद कौन सी डेट होगी, या इस मंथ के इतने महीने बाद कौन सा मंथ होगा। सो ई डेट विल रिटर्न टू यू और विल गिव टू यू द डेट आफ्टर अ specified period of time, and e month will return to you the month after a specified period of time. Now let us see how these functions are used in Excel. Okay, let me shorten this so that all of it can appear here. Okay, let's say I'm writing here, this is E date and this is E month. Equal to E date, you select this. This is the date. आपको कितने महीनों बाद चाहिए? लेट्स से मुझे अपने 4 महीने बाद की डेट चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। एक्सेल ने यहाँ पे आपको 44317 जैसा कुछ दे दिया है, उसको थोड़ा इग्नोर करो। आई विल एक्सप्लेन इट व्हाट इज मेंट बाय दिस। ऐसे ही आई विल यूज इक्वल टू ई मंथ। अब ई मंथ की शॉर्टकट की होती है ई ओ एंड मंथ। अगेन आई हैव सिलेक्टेड दिस और मैंने यहाँ पे भी 4 महीने बाद की डेट मांगी है। अब सबसे पहला 2 क्वेश्चन हमारे माइंड में आए। पहला कि मैम ये इसने डेट तो दी नहीं, ये तो सीरियल नंबर जैसा कुछ दे दिया इसने। और दूसरा कि दोनों में ही हमने सेम डेट स्पेसिफाई करी और दोनों में ही हमने 4 महीने बोला, तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अब दोनों का आंसर देखते हैं कैसा होगा। सबसे पहले तो ये जो सीरियल नंबर आपके पास आया है, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेट में। एक्सेल कई बार हमको डेट की जगह एक सीरियल नंबर दे देता है। ये एक्सेल का तरीका है, एक्सेल की लैंग्वेज है किसी भी डेट को पढ़ने के लिए। अब इस सीरियल नंबर को आपको डेट में कन्वर्ट करना है। सो इट्स अ वेरी सिंपल वे। यू सिलेक्ट ऑल दीज कॉलम्स, यू गो ऑन दिस टैब वेयर इट इज रिटन जनरल एंड नंबर, and you select date here. Excel will now convert all these into dates. So first query is solved. Second query, and what is the difference between E date and E month? So we can very well see here.
For example, if the, let me just, okay, the date was 1st January 2021, then we have used E date. After 4 months, so it has given me 1st May 2021 only. इसने मुझे 1st May ही दिया है, लेकिन जब मैंने E month बोला, so it has given me 31st May. That means similarly 3rd September 2020. So here it has given me 3rd January 2021, that means after 4 months, but here it has given me 31st January 2021. तो ई डेट आपको एग्जैक्टली 4 महीने बाद की डेट देगी, चाहे वो 15 तारीख है, चाहे वो 16 तारीख है, चाहे वो 1 तारीख है, चाहे वो 30 तारीख है, वो आपको उसी डेट से डेट टू डेट कैलकुलेट करेगी वो. लेकिन ई मंथ विल ऑलवेज गिव यू द लास्ट डेट आफ्टर 4 months. जैसे यहाँ पे लास्ट मंथ तो मई था, बट यहाँ पे वो 1st मई हो गया, यहाँ पे वो 31st मई हो गया. यहाँ पे 3rd जनवरी है, यहाँ 31st जनवरी है, या 9th दिसंबर है, यहाँ 31st दिसंबर है. सो ई मंथ विल गिव यू द लास्ट डेट विच कैन बी 31st or 30th, and ई डेट विल रिटर्न यू the specified date, the exact date after the particular month. Now these two formulas I hope are clear, E date and E month. Clear all of you? Okay, now related to the dates, we have 2 or 4 formulas more here. One is weekday, one is week number. Now weekdays and week number. Again, I want to know 1st जनवरी 2021 को कौन सा डे था? मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, क्या था? या फिर मुझे बताओ 19 मार्च 2020 में साल का कौन सा हफ्ता चल रहा था? हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर? हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर? 52. मुझे बताओ कि 19 मार्च 2020 वीक का पूरे साल का कौन सा नंबर था? सो सिंपली उसके लिए यू कैन यूज 2 formulas are there. एक है वीक डे विच विल गिव यू वेदर इट इज अ मंडे और अ ट्यूसडे, और एक होता है वीक नंबर विच विल टेल यू वो आपके साल का कौन सा वीक था. ये कैसे पता चलेगा? इक्वल टू आई विल यूज वीक डे. वीक डे में दिस इज माई डेट, दैट इज द सीरियल नंबर. एक्सेल डेट को सीरियल नंबर से रिप्रेजेंट करता है, कॉमा. रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. मतलब आपसे वो पूछ रहा है, आप लेना चाहते हो नंबर 1. नंबर 1 मीन्स 1 is Sunday, 2 is Tuesday, 3 is Wednesday. नंबर 2 वेयर 1 is Monday, 2 is Tuesday. कैसे आपको चाहिए? क्योंकि एक्सेल आपको मंडे ट्यूसडे लिख के नहीं देगा, एक्सेल आपको 1 2 3 4 लिख के देगा. So I always take it because as per me my convenience is always 2, because I think number 1 as Monday, number 2 as Tuesday, 3 as, so 1 to 7 means Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Bracket close, enter. So 5, now 5 means Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So 5 means Friday. Double click. 4 means Thursday. 1 means Monday. 4 means again Thursday. 7 means Sunday. So 12th December 2021 will be a Sunday. And 1 means again Monday. अगर आप इसको दूसरे फॉर्मेट पे लेना चाहते हो, so you can take it जैसे भी आप चाहो. आप संडे को फर्स्ट लेना चाहते हो, आप मंडे को फर्स्ट लेना चाहते हो, यू कैन डू इट वट एवर वे यू वॉन्ट. वीक नंबर विल टेल यू कि ये कौन सा हफ्ता था, इक्वल टू वीक नंबर. दिस इज द सीरियल नंबर, कॉमा. अगेन इट विल आस्क यू द रिटर्न टाइप. नाउ रिटर्न टाइप का क्या मतलब है, एंड इट इज ऑप्शनल हियर. ऑप्शनल है तो पहले मैं इसके बिना इसको कर रही हूँ. ब्रैकेट क्लोज, एंटर. So this was the first week. Obviously, 1st January 2021 is the first week. 36th week, 33rd week, 12th week. अब week number में एक होता है return type. Return type का क्या मतलब होता है? Again, this is the serial number, comma. इसने रिटर्न टाइप में आपको काफी सारी चीजें लिख के दे दी. 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे, 11 अगेन फॉर मंडे, 12 फॉर ट्यूसडे, 13 फॉर वेडनेसडे, 14 फॉर थर्सडे. इसका क्या मतलब है? वो आपको बोल रहा है कि आपको
जब आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते हो तो वो नॉर्मली अपनी वीक नंबर्स कैलकुलेट करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीक। लेकिन जब आप यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर लेते हो तो आप एक्सेल को बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला लेट्स से यू से इट 12 फॉर ट्यूसडे। 12 फॉर ट्यूसडे का मतलब है कि जब से ट्यूसडे स्टार्ट होगा ना, जब ही से आपका वीक स्टार्ट होगा, उससे पहले से आप वीक नंबर्स कैलकुलेट नहीं करोगे। इफ आई राइट 12 here, I close my bracket. Again, it has given me first week, although it was a Friday. जब से मेरा ट्यूसडे स्टार्ट होगा तब से मेरा वीक 1 स्टार्ट होगा। सो दिस डेट विल ऑब्वियसली फॉल इन द फर्स्ट वीक, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे। अब आप ये देखो क्या ये और ये सेम है? कुछ जगह ये और ये सेम है, बाकी जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फॉर 12th December दिस इज 51 and this was a Sunday, but for the week number where the weeks are starting from Tuesday, this is 50. Why this is 50? क्योंकि आपने week 1 जो है वो Tuesday से स्टार्ट किया। सिमिलरली दिस इज 39 हेयर, दिस इज 38 हेयर। कुछ जगह पे ये सेम है जहाँ पे बाय चांस वो सेम आ रहे हैं, जैसे यहाँ ये बाय चांस सेम आएगा क्योंकि वो आपकी फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर है, तो उस वीक में आपका ट्यूसडे तो फॉल करेगा ही करेगा, तो वो उसको एज अ फर्स्ट वीक काउंट कर लेगा। सो दिस इज हाउ एक्सेल वर्क्स फॉर वीक डेज एंड वीक नंबर। Suggestion here is always that you always use it without giving any return type. एक्सेल को अपने आप करने दो ये काम। एक तरीका एक्सेल देता है नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज इन 10, छुट्टियां कैलकुलेट करने का एक तरीका, बहुत ही सिंपल सा। 2 पर्टिकुलर डेट्स में मुझे अपनी छुट्टियां कैलकुलेट करनी है, तो एक्सेल बोलता है आप नेटवर्क डेज यूज करो फंक्शन, या फिर आप एक और फंक्शन है, एडवांस फंक्शन है जो इसका, दैट इज नेटवर्क डेज इंटेल, आप फंक्शन यूज करो। अब ये कैसे होता है एक्सेल में और इसका क्या मतलब होता है? नेटवर्क डेज आपको बताएगा 2 पर्टिकुलर डेज में वीकेंड हटा के कितने वर्किंग डेज हैं, मतलब इक्वल टू, आप लोग ये फंक्शन यूज कर सकते हो, पूरे साल में आपको कितने दिन कॉलेज जाना है। सैटरडे संडे कॉलेज नहीं जाना होता, अभी ये प्लीज इग्नोर दिस ऑनलाइन टाइम्स। सैटरडे संडे हमें कॉलेज नहीं जाना होता, मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं, तो पूरे साल में कितने दिन कॉलेज जाना है, इक्वल टू network days, starting date, let's say starting date is 3rd September 2020, comma ending date is 1st January 2021, comma weekends को तो वो खुद हटा देगा, बाकी आप एक्सेल को ये बता दो कि छुट्टियां कितनी पड़ रही हैं, वीकेंड्स वो खुद हटा देगा, सैटरडे संडे वो वीकेंड लेगा, आप ये बता दो छुट्टियां कितनी पड़ रही हैं। लेट मी से इस दौरान पूरी 12 छुट्टियां पड़ रही हैं, बाकी आपके 87 वर्किंग डेज हैं। दैट मीन्स इन दोनों डेट्स में 3 सितंबर 2020 से लेके 1 जनवरी 2021 तक सैटरडे संडे और 5 छुट्टियां और हटाने के बाद आपके वर्किंग डेज कितने बन रहे हैं, 87। कुछ कंपनीज में सैटरडे की छुट्टी नहीं होती, कुछ मार्केट्स में आप नॉर्मल ये कपड़ा मार्केट लो या कोई भी और मार्केट लो, कोई मार्केट मंडे बंद होती है, कोई ट्यूसडे बंद होती है, कोई संडे बंद होती है, तो क्या हम उनके लिए एक्सेल में ये फंक्शन यूज नहीं कर सकते? अटेंडेंस, अंश प्लीज वेट, क्या हम उनके लिए ये फंक्शन वहां पे यूज नहीं कर सकते? यस, वी कैन यूज दैट फंक्शन देयर एज वेल। हाउ वी कैन यूज? इक्वल टू नेटवर्क इंटेल, again you select the starting date as 3rd September 2021, the ending date as 1st January 2021. now it will ask you कि आपका वीकेंड क्या है, सैटरडे संडे है, संडे मंडे है, मंडे ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे है, सिर्फ संडे है, सिर्फ मंडे है, सिर्फ ट्यूसडे है, सिर्फ वेडनेसडे है। नाउ यू कैन स्पेसिफाई कि आपका वीकेंड कैसे है। लेट मी से माय वीकेंड इज दिस संडे ओनली, कॉमा, और मेरी 5 हॉलीडेज पड़ रही हैं। अब आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, बिकॉज सैटरडे इज नो लॉन्गर अ वीकेंड, Saturday is a working day, so now it has calculated that the number of working days in these particular days is 104 and not 87. So this is how these two functions can be used.
Now some very minor functions, the time functions, very quickly. जैसे मैंने आपको ये डे मंथ ईयर बताया, एक्सेल में आप सिमिलरली टाइम फंक्शंस भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन 12 12 13 15 16 59 इक्वल टू, ये मैंने एक्सेल में टाइम लिखा है. 12 का मतलब है 12:12 15 ना 15 मीन्स 2:16 और 59 सेकेंड. 15 मीन्स 2, 13 मीन्स 1, 14 सॉरी 3 बज के. ओके यस 15 मीन्स 3. आप चाहो तो इसको इक्वल टू टाइम और खुद टाइम टाइप कर दो. आर मीन्स इट इज द 13th आवर लेट्स से, और लेट मी राइट इट इज द 15th आवर, comma minute, let me say it is the 17th minute, second let me say it is the 17th second, bracket close. it will give you 3:17 pm. एक्सेल का अपना फॉर्मेट है, आप चाहे तो अपना फॉर्मेट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो. नाउ सिंपल, this is the time function in Excel which we can use here. Similarly, we have hour, minute, second and now. Now function क्या होता है? सबसे पहले now function देख लेते हैं. Equal to now, जैसे हमने equal to today किया था, today में हमें आज वाली डेट पता चल गई थी. इस equal to now करेंगे तो हमें ना सिर्फ आज की डेट बट अभी जो फिलहाल 16:51 जो टाइम हो रहा है वो भी पता चल जाएगा. So this is the now function in Excel. Last three functions hour, minute, second. जैसे day, month, year था वैसे है आर, मिनट एंड सेकेंड. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा एक्सेल में. इक्वल टू आर, दिस इज द सीरियल नंबर. इट विल रिटर्न टू यू कि कौन सा घंटे के 12 15 15 16 विच आर यू आर टॉकिंग अबाउट. इक्वल टू मिनट, अभी आपको यहां से सिर्फ मिनट वाला कॉलम दे देगा. सो इट विल बी 12 16 17 एंड 52. आई हैव टोल्ड यू ये टाइम यहाँ पे अपने आप अपडेट होता रहेगा. सिमिलरली इक्वल टू सेकेंड, अभी आपको सेकेंड वाला पार्ट दे देगा यहां से एक्सेल से. सो equal to second. So by default you will come to know which second it is talking about, which minute it is talking about and which hour it is talking about in Excel. So with this all the date, time, mathematical functions are complete from my side. You can ask any doubts if you have. Although there will be many more mathematical functions, many more date and time functions in Excel, but because of the limitations of time and our course, we have completed only this much. I have tried to cover almost all the functions. Those who have any doubt, they can always ask their doubts. Those who are not having any doubts, they can just mark their attendance in the chat box and they can leave the meeting. I will also share a feedback form which you have to fill. I will share that feedback form on your WhatsApp group. So all of you are very kindly requested to fill that feedback form. Yes, any doubts? Quickly tell me.